یہ ہم اثر مفکروں فلسفیوں لکھنے والوں کا فرض ہے کہ ان کی نشاندہی کریں. یہ مسائل آفاقی ہیں اور ان کا قاری ایک عالمگیر شہری. اردو کو عالمی ادب میں اس کی پہچان دلانے کے لیے ضروری ہے کہ اردو کے لکھنے والے ان انسانی مسائل پر لکھیں جو جغرافیائی سرحدوں کے پابند نہیں ہیں. اگر گزشتہ چند 100 سالوں میں عالمی سطح پر قبولیت کی صنعت پانے والی تحریروں کو دیکھیں تو ان میں ایک جزو باہم ان کی عالمگیریت ہے. روسی ادیبوں نے خاص طور پر وہ شاہکار نثر تحریر کی ہے کہ جس کی بازگشت آج غیر روسی نثر میں بھی ملتی ہے. آئیے اس کی مثال ہم اپنی نثر میں ڈھونڈتے ہیں. جب آپ منٹو کے افسانے ٹھنڈا گوشت کو پڑھیں تو ایک بہت خوبصورت محبت کی کہانی ہے. میں اپنے ان دوستوں سے معذرت خواہ ہوں جو اسے ایک محبت کی کہانی تسلیم کرنے پر تیار نہیں، لیکن میرے فہم کے مطابق یہ ایک عورت کی محبت کی داستان ہے جسے منٹو نے تقسیم کے دھاگے سے بنا تھا. اسے عالمگیر سطح پہ اس لیے روشناس کرایا جا سکتا ہے کہ اس میں سے آپ اگر تقسیم کے پس منظر کو نکال کے اس کی جگہ بوسنیا، فلسطین یا ہولوکاسٹ کسی بھی پس منظر کو رکھ دیں تو اس کہانی کی خوبصورتی پر ذرا بھی حرف نہیں آئے گا اور دنیا کے ہر خطے کا قاری اس میں اپنی پہچان ڈھونڈ لے گا. یہ ایک عالمی پس منظر کی کہانی ہے. ہمارا ادب عموماً جو ہے وہ ریئیکشنری ادب ہے جو غالباً صحافتی زیادہ ہے اور تصوراتی کم ہے. لیکن اس میں ایسی کوئی مایوسی کی بات بھی نہیں ہے. خود انگریزی، فرانسیسی، لاطینی وغیرہ میں لاکھوں کتابیں لکھی جاتی ہیں لیکن ان میں سے صرف چند درجن ہی عظمت کے مینار کی چڑیاں چڑھ پاتی ہیں. ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ اردو میں ایسے ادب کی شناخت کریں اور اس کے تراجم عالمی منڈی میں روشناس کرائیں. مغربی دنیا میں رہنے والے وہ باشندے جن کو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں استطاعت ہے اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. حلقہ ارباب ذوق کی تنظیم نو کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اردو کی عالمی سطح پر پہچان کے سلسلے میں دامے در میں جو کوششیں ہم سے ہو سکیں وہ یہاں بیٹھ کے کریں. سعید نقوی یا ممتاز حسین کے افسانے، شوکت فہمی یا احمد مبارک کی غزلیں اردو کی کوئی خدمت نہیں ہے. یہ سعید نقوی اور شوکت فہمی کی اپنی ذات کی خدمت ہے. اب جبکہ حلقہ ارباب ذوق کی تنظیم نو ایک خاص نہج پر پہنچ گئی ہے، ہمیں اس کے دیگر اغراض و مقاصد کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. جو لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ میرا جی، نون میم راشد، اختر الرحمان کی نظموں کے ترجمے کرے، رشید امجد، رفیق حسین یا منشا یاد کے منتخب افسانوں کے ترجمے کرے. یہاں بہت سے اہل دانش باقاعدگی سے آتے ہیں جن کی اردو اور بین الاقوامی ادب دونوں پر گہری نظر ہے. آپ انتخاب کے سلسلے میں ان سے مشاورت کر سکتے ہیں. پھر یہ کہ حلقے کی نان پروفٹ حیثیت کے لیے درخواست متعلقہ محکمے کے پاس موجود ہے. ایک دفعہ یہ سند مل جائے تو پھر نیو یارک اسٹیٹ ترجموں کے لیے مالی مدد بھی فراہم کرتا ہے. میری تجویز ہے کہ ہم ایک دوسرے کی فراست اور مطالعے سے استفادہ کریں اور حلقے کو ایک مشاورتی پلیٹ فارم یا ساؤنڈنگ بورڈ کے طور پر استعمال کریں جس سے کچھ بامانی کام ہو سکے. ورنہ صرف روایتی غزل گوئی اور افسانہ نگاری سے ہم اپنی خدمت تو کرتے رہیں گے، اردو زبان کا قرض اپنی جگہ برقرار رہے گا. عالمی ادب میں اردو ادب کی پہچان کے حوالے سے ڈاکٹر سعید نقوی اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے اور بہت اچھی انہوں نے باتیں کی، اور خاص طور پہ یہ کہ ہمارا ادب جغرافیائی سرحدوں کے پابند نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی بھی ادب اس کا پابند نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ روایت ہے، میں صاحب صدر سے پوچھتا ہوں کہ اس سلسلے میں اگر کوئی تبصرہ کرنا چاہے جو سنائے تو اس پہ تبصرہ بالکل ہو سکتا ہے اور بہت ہی فورم اوپن ہے. تو اس سلسلے میں اگر کوئی مختصر تبصرہ آئے اس کے اوپر تو ضرور. جی آپ وہیں سے کریں گے یا میں ٹھیک ہوں جیسے جی ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ مضمون بھی ہو جائے ہاں بالکل اس کے بعد کوئی ذرا مضمون نہیں ہے اصل میں. جیسے کہ ہماری نصرت انور جن کو ہم باجی نصرت کہتے ہیں، آج عالمی ادب میں اردو ادب کی پہچان کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے. جیسے انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہم نے موضوع چینج کر دیا تھا تو لہٰذا میں اس پہ صرف بات کروں گی، ورنہ سعید نے بہت ہی اچھا مضمون بنایا ہے اور پڑھا ہے. جس چیز کو میں نے خیال میں رکھا وہ جب میں نے سوچا تو سعید نے تو بہت آگے کی بات کر دی ہے. میں تو بہت پیچھے سے آتی ہوں کہ پریم چند کے علاوہ یا غالب کی 30-32 غزلوں کے علاوہ اور
कुछ और ऐसा थोड़ा बहुत के अलावा उर्दू तो अभी वेस्ट में किसी जगह आई ही नहीं। तो वो बात मेरे दिमाग में थी और उसको तो, और दूसरी बात ये कि कुछ लोग जो मेरे दोस्त अहबाब में से हैं, उनको हर वक्त उर्दू ज़बान के फौत होने का एहसास रहता है कि ये ख़त्म होने, ज़बानें कभी ख़त्म नहीं होती। कोई भी ज़बान जो है, तो इस तरह मैंने एक छोटा सा ऐसे थोड़े पॉइंट्स लिखे थे कि 2009 में इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक की रिसर्च के मुताबिक बाइबल के मुख्तलिफ हिस्सों के तर्जुमे 2508 ज़बानों में हुए। इसका मतलब है कि वो ऐसी ज़बानों उनके लिए हुए जो पढ़ सकते हैं, जो कि फुल कवरेज नहीं है। एक सिल एंड इंटरनेशनल के मुताबिक 6909 मुख्तलिफ ज़बानों पर कुछ तहकीक हुई है और ये भी फुल कवरेज नहीं है। 50 इम्तियाजी ज़बानों में उर्दू 20 नंबर पे आती है और एक रफ अंदाजे के मुताबिक 220 मिलियन लोग इसको बड़े सगीर और दूसरी जगहों पे करीबन 400 के करीब बाकी दुनिया के मुख्तलिफ सारी मिला के बोली जाती है। पढ़ी जाती है ये मैं कह नहीं सकती। दुनिया में सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हिंदुस्तान में है और उसकी सारी फिल्में उर्दू में बनती हैं, जिसको वो हिंदी कहते हैं और जिसमें बिला तफरीक और इम्तियाज सब समझते हैं। वो उर्दू है, आप उसको हिंदी कह सकते हैं। हिंदी के अल्फाज के इजाफे के साथ उसमें और वसअत होती जाती है। बाहर कैफ उन फिल्मों के गीत लिखने वाले काफ़ी खूबसूरत हिंदी या उर्दू में लिखते हैं। अब इसका मैंने जिक्र क्यों किया है? इसका जिक्र इसलिए किया है कि ये फैलती जा रही है और सिर्फ बड़े सगीर पाक व हिंद में ये देखी नहीं जाती फिल्में, ये पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। यहाँ के पैदा हुए बच्चे यहाँ के ये सारे गीत गाते हैं और इन पे अपने अपने कॉलेजों स्कूलों में नुमाइंदगी करते हैं, कोई डांस की, कोई भंगड़े की। ये मुझे ज़ाती तजुर्बा है कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो शोबा तालीम से रहा है। ऊपर के शुमारियात का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि वो बहुत सारे बर्गर क्लास लोग इस तरह के दावे करते हैं कि ये ज़बान कुछ अरसे की मेहमान है। ज़बान कल्चर का सबसे बड़ा रुकन है और कल्चर में तब्दीली सालों में नहीं सदियों में नहायत आहिस्तगी से आती है। इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि उर्दू को कुछ किसी किस्म का ज़ख्मी हो रही है। अगर एक तरफ से ज़्यादा उसको बच्चे कम बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ से कुछ लोग उसको सीख रहे हैं। रहा सवाल उर्दू अदब के दुनिया में फैलाव का, तो ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? गालिबन हुकूमतों की नाअहली, रुपए पैसे की कमी और दारुल तराजुम का अदम वजूद और शायद अंग्रेज़ी ज़बान की फ़ौक़ियत का एहसास। क्योंकि अगर तर्जुमा, जैसे कि सईद ने बताया है, तो तर्जुमा तो इंटरनेशनल लैंग्वेज जो सारी दुनिया में, जिसके ज़रिए रशिया का अदब पढ़ा जाता है या जिसके ज़रिए मैंने या आपने फ्रांस को पढ़ा या और बाकी दुनिया की ज़बानों, ताओ को पढ़ा, माओ को पढ़ा, ये सारे आपने अंग्रेज़ी में पढ़े। ओके। पाकिस्तान बनने के बाद मार्शल्लाह और दीगर मार्शल्लाह के बाद फौजी हुकूमतों की दी हुई बेत बनानी और सियासी माहौल की घुटन की वजह से तख्लीकी काम तो हुआ, मगर इस काम को बाकी दुनिया से मुतारिफ कराने की बात नहीं हो सकी। और हमारा फोकस यही है कि हमें किस तरह से अपना लिटरेचर जो है किसी तरीके से बाहर लाना है। बुखारी साहब, पतरस बुखारी, वो काफ़ी बड़े ओहदे पे थे और बहुत अंग्रेज़ी और उर्दू में उनको इक्वल दस्तरस थी। मुझे ये समझ नहीं आती कि वो एक बहुत बड़े ओहदे पर होने के बावजूद उन्होंने इस सिलसिले में कोई ख़ास काम नहीं किया। हालांकि अदब की जो हमारा अदब है, जिसको उसकी सतह बहुत बुलंद थी, उर्दू नज़्म, उर्दू गज़ल, उर्दू कहानी, नावल अदबी जायके से भरपूर थे। उर्दू नज़्म के कदीम शायरों में नज़ीर अकबर आबादी, इस्माइल मेर्दी, चकबस्त, खुशी मोहम्मद नाज़र, इकबाल, रूमानी शायरी में शीरानी, जोश, फैज़, नदीम, ज़हीर काश्मीरी, मीरा जी, कतील, बहुत सारे
नाम हैं जो बहुत अहम हैं, और इन सब में से है मजीद अमजद, जो मौज़ूआत के एतबार से गैर मामूली तनव्वु और उसलूब में हीरे जवाहरात जड़ने वाला शायर, जिसकी शायरी पाकिस्तान की सोना उगलती ज़मीन और खूबसूरत तस्वीर कशी करती है। क्या इन लोगों को इधर आना नहीं चाहिए था, या दूसरी दुनियाओं से मुतारिफ होना नहीं चाहिए था? जब हम यहाँ के शायरों को पढ़ते हैं या नोबेल प्राइज विनर्स को पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ अपने यहाँ भी पढ़ा हुआ नजर आता है। जैसे मुनीर नियाजी जो है गैर मामूली शायर है, और मैं उसकी ऑस्ट्रेलिया का जिसको नोबेल प्राइज मिला है थॉमस ट्रांसरोमर, उसकी 3 नज़में मैंने पढ़ी, बहुत खूबसूरत नज़में थी, लेकिन मैंने ऐसी नज़में मुनीर नियाजी की पढ़ी हुई थी इस किस्म की। तो कहने का मतलब है कि जब हम बाहर जाएंगे ही नहीं, जैसे अख्तर हुसैन जाफरी हैरान कर देने वाली नज़में, आफ्ताब इकबाल शमीम फहमीदा रियाज किश्वर नाहिद, क्या इन सब का वेस्ट से मुतारिफ होना ज़रूरी नहीं था? इसके लिए कोशिश किसने नहीं की? हमने खुद ही कोशिश नहीं की। कहानी की दुनिया में प्रेमचंद, डिप्टी नज़ीर अहमद, कुर्रतुल ऐन हैदर, सादत हसन मंटो, बेदी, रामलाल, गुलाम अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चुगताई, इंतजार हुसैन, अशफाक अहमद, अख्तर हुसैन रायपुरी वगैरह, अहमदुद्दीन कासमी, कृष्ण चंद्र जी, ये कहानियाँ अपने खित्ते की पोर पोर की नक्शाकशी करती हैं, यानी छोटी छोटा हिंदो पाकिस्तान की तारीख, जोग्राफिया, रहन सहन, माशरत, रसूमात, तकरीबात, मेले ठेले, सब कुछ अपने अंदर समाये हुए हैं। हमने निसाब में दर्ज कहानियों और गैर निसाबी कहानियों के जरिए अगर बिन देखे अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन देखा है, तो हम भी ये कोशिश कर सकते थे कि बड़े सगीर पाक व हिंद के पहाड़ों, वादियों, शहरों और गाँव में उगने वाली कहानियों का चेहरा करवाते। अगर हमने रोमियो जूलियट को पढ़ा और देखा, तो हम भी उनसे हीर रांझा, ससी पुन्नू, कैदो खेड़े, मिर्जा साहिबा को मिलवाते। इसके लिए कोई कोशिश नहीं हुई, हमारे यहाँ काम ही नहीं हुआ, और इस काम के ना होने की वजह से वो हमें हकारत से रफीक ही समझते रहे, अभी तक रफीक समझते हैं, और हम भी उनकी इस गलत फहमी को बढ़ावा देते रहते हैं। 1946 में मदन गोपाल ने बॉम्बे में एक लिटरेरी बायोग्राफी प्रेमचंद की लिखी। 1957 में हंसराज ने प्रेमचंद की जिंदगी और उनके काम पर अंग्रेजी में लिखा। इंद्रनाथ मदन ने प्रेमचंद पर 1946 में एक किताब लिखी, कैलिफोर्निया। अब मैं थोड़ी सी होपफुल थी, और मैंने ये निकाला कि कहीं कुछ काम हो भी रहा है कि नहीं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में यूनेस्को में 3 मजमूए प्रेमचंद के तर्जमे हुए हैं। चलो, कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है। शॉर्ट स्टोरी यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो बाय ज़हरा साबरी, ये कहाँ हुआ है? मैंने असल में ध्यान से नोट्स नहीं दिए थे, मैंने बस देखा और खुश हो गई। अमीना असफर ने यादगार कारनामा सरअंजाम दिया है। उन किताब का नाम है द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ उर्दू शॉर्ट स्टोरीज, ऑक्सफोर्ड में हुई। उसमें एक मजमून रजा रूमी साहब का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह उर्दू अदब दुनिया के साथ जुड़ रहा है। किताब में जिन लोगों की कहानियां हैं वो नए और पुराने नाम हैं। खालदा हुसैन की 2 कहानियां हैं, तर्जुमा उमर मेमन साहब ने किया है। मैंने बाकी सारे मुतरजमीन के नाम लिखे थे, फिर मैंने आते वक्त सब काट दिए। मैंने कहा अगर कुछ करना होगा तो देख लेंगे। रायपुरी की कहानी गर्दे राह, साजिद ज़हीर की कहानी रोशनाई, खालदा हुसैन की कहानियाँ प्रेमचंद, गुलाम अब्बास, मंटो की तोबा टेक सिंह, अहमदुद्दीन कासमी, इशफाक अहमद और फहमीदा रियाज।